اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کلاس 6 کا ہم نے وہ سائنس کا چیپٹر نمبر 4 اٹھایا ہوا ہے، تو اسی پہ بات ہو رہی تھی. تھوڑا میں آپ کو ریکال کروں گا کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. اس چیپٹر کا نام ہے سارٹنگ میٹیریلز انٹو گروپس. اس میں ہم نے آپ کو بہت ساری چیزوں کی وہ جانکاری دے دی ہے کہ جن کی بہت ساری پراپرٹیز ہے. پراپرٹی وائز ہم نے ان کو آپ کو بتایا ہے: لیونگ، نان لیونگ، بگ، اسمال، لکوڈ، سالڈ، گیس. اسی طرح ہم نے آپ کو بہت ان کی کیٹیگریز بتائی، جن بنا پہ ہم نے آپ کو بتایا ہم جو مٹیریلز ہمارے آس پاس ہیں ہم ان کی گروپنگ کر سکتے ہیں. تو 4.1 جو آبجیکٹس اراؤنڈ اس ٹاپک پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، اور پھر میں نے آپ کو وہ جو آپ کی اسکرین کے سامنے یہ آبجیکٹس ہے ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی. پھر ہم نے ایک ایکٹیویٹی بھی کی تھی کہ بہت سارے میٹیریلز کو ہم کلیکٹ کریں گے یا ہم کلاس روم میں دیکھیں گے، یا بہت ساری جو ایگزامپلز ہم نے دے دی تھی آپ کو. تو اس میں ہم نے آپ کو یہ پھر ٹیبل کا بتایا تھا کہ کس طرح ایک آبجیکٹ کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. تو ایک ہی مٹیریل کے ڈفرینٹ آبجیکٹس بنے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پلاسٹک کے کہیں بہت ساری چیزیں پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے، ووڈ کی بہت ساری چیزیں بنی ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم نے اور ایک ٹیبل کیا تھا مٹیریلز آبجیکٹس میڈ فرام دیز مٹیریلز. اب مٹیریلز کی ہم نے بات کی تھی، جیسے ووڈ ہے، پیپر ہے، لیدر ہے، پلاسٹک ہے، کاٹن ہے. تو ان سے ہم کون سی ڈفرینٹ چیز کس طرح بناتے ہیں. یہاں پر آپ کے لیے وہ کچھ ہم نے رکھا تھا یہ ایکٹیویٹی بھی، جو میں پھر آپ کو یہ زوم کر رہا ہوں. اس میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو آپ خود چند چیزیں آپ خود کرو گے. یہاں پر کچھ دیا ہوا ہے مٹیریلز. ووڈ، جیسے ووڈ سے ہم چیئر بناتے ہیں، ٹیبل بناتے ہیں، بلو کاٹ، سو مینی تھنگس آپ لکھ سکتے ہو. اسی طرح پیپر سے ہم بکس، نوٹ بکس، نیوز پیپرز، ٹوائز، کیلنڈرس. اسی طرح سے لیدر کی ایک دو میں نے ایگزامپلیں آپ کو دی. شوز ہم بناتے ہیں، یا ہم بیگز بناتے ہیں، ویلٹس بناتے ہیں. اس طرح سے آپ اور ساری مثالیں لے سکتے ہو. اور پلاسٹک کی میں ایک مثال دوں گا، باقی 2-4 مثالیں آپ گھر پہ کرو گے، یا 8-10 مثالیں گھر پہ لے لو گے. پلاسٹک سے ہمیں جو آبجیکٹس حاصل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل چیئر ہے، ٹیبل ہے، اسی طرح بہت ساری 5-6 آپ خود لکھو گے. اسی طرح جو کاٹن ہے، کاٹن کی ہمارے بہت کلوتھس ہے، بیگس ہوتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو آپ خود کرو گے. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں. تو یہاں تک ہم نے بات کی تھی. آج ہم نے جس موضوع پہ بات، پھر ہم نے ایکٹیویٹی 2 بھی ہم نے کری تھی، ایکٹیویٹی 3 بھی. آج ہم 4.2 اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے پراپرٹیز کی ہم تھوڑی بہت یہاں پر ڈسکشن کریں گے. یہ پراپرٹیز بھلا کیا چیز ہوتی ہے. ایکچولی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک گلاس ہے، اس میں کچھ لکوڈ ہے. اگر لکوڈ کو تھامنے کے لیے آپ ایک گلاس سے لے سکتے ہو، یا ایک جگ لے سکتے ہو، یا ایک کٹوری لے سکتے ہو. ان پلیس آف دیٹ آپ کلاتھ نہیں لے سکتے ہیں، یا آپ کسی اور چیز کو نہیں لے سکتے جو اس لکوڈ کو ہینڈل نہیں کر سکتا ہے. یہ ایک پراپرٹی ہے، دس سے پراپرٹی. کوئی خصوصیت ہو کسی چیز میں، ان کو پراپرٹی بولتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزوں کی بہت ساری پراپرٹیز ہوتی ہے. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی پراپرٹیز ہے. فار ایگزامپل ہم یہ کہیں گے، کلاس میں آپ کی کلاس کی بات کریں گے. ایک کلاس فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سیونتھ، سکستھ، ایٹتھ. آپ 6th کلاس کے ہو. یہ آپ لوگوں کی ایک پراپرٹی ہے. دس از اے اسپیسیفک پراپرٹی آپ لوگوں کی. 6th کلاس میں ہے، آپ کے لیے اسپیشل جو سلیبس دیا ہوا ہے، دیٹ از فار دا اسپیسیفک 6th. وہ 7th کے لیے نہیں ہے، وہ 8th کے لیے نہیں ہے. اس طرح 8th کلاس والوں کے لیے ان کی جو ان کی پراپرٹیز آتی ہے، اس میں الگ ہے. ان کے لیے سلیبس الگ ہے، ان کے لیے کیریکولم الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے پراپرٹی کی ہم یا مطلب بات کریں گے پراپرٹیز میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جب ہم بجلی کا سامان دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں الیکٹرسٹی کا سامان ہے، تو ہم وائرز دیکھتے ہیں جن سے یہ بجلی ترسیل ہوتی ہے، جن سے الیکٹرسٹی کرنٹ پاس ہوتی ہے، ترسیل ہوتی ہے. گڈ کنیکٹرس آف جو الیکٹرسٹی ہم کہیں گے، تو اس میں ہم المونیم کا دیکھتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، کاپر وائر کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا اس میں استعمال کرتے ہیں. تو اسی کے اوپر ہم دیکھیں گے، اگر ہم نے وہ پلاس جس سے ہم ایک کوئی الیکٹرک اکوپمنٹس ٹھیک کرتے ہیں، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس پیچھے جو پلاس کے جو ہاتھ میں ہم لیتے ہیں جو پورشن، تو وہ اس میں پلاسٹک ہوتا ہے. اسی طرح ہماری جو کاپر وائر ہے،
कॉपर वायर है उसके ऊपर जो कवरिंग है वो प्लास्टिक की होती है, या अलुमिनियम वायर में कभी कभी हम उसके ऊपर जब ज़रूरत पड़ती है घर के अंदर इस्तेमाल कर, जो पोलों पे नहीं इस्तेमाल नहीं होती है, तो उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम केबल कहते हैं, केबल के ऊपर एक कवरिंग होती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है उन चीज़ों की जो बिजली को पास नहीं होने, तो हमको ईजीली उनको हैंडल करने में होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बिना पर हम ग्रुप्स को सॉर्टिंग करते हैं, ग्रुप्स में सॉर्टिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हम कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब हमने डिफरेंट मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल पेपर है, कपबोर्ड है, वुड है, कॉपर है। यहाँ पर आप दिए हुए हैं, अगर आप देख सकते, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको, ये पेपर है, कपबोर्ड है, वुड है, कॉपर है, वायर है, एल्युमिनियम वायर है, शीट्स है, चाक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को हमने कलेक्ट करना है। तो और फिर क्या करेंगे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उनको अलग करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ये हम प्रॉपर्टी ले लेंगे, अब उन चीज़ों को अलग करो, हुआ द शाइनिंग। अगर इसके बगैर भी हम आपको कहेंगे शाइनिंग वाली चीज़ों को अलग करो जिनमें शाइन होती है, तो डेफिनेटली है। अब गोल्ड है उसमें शाइनिंग है, मिरर है उसमें शाइनिंग है, हाँ, जो इससे सेपरेट मैं करता हूँ। इसी तरह से जो वायर है उसमें शाइनिंग होती है। कुछ चीज़ें उनमें शाइन नहीं होती, जो कुछ स्टोन्स होते हैं उनमें शाइन होती है, पर्ल्स है उनमें शाइन होती है, और कुछ चीज़ें जो डिम जिनमें शाइन नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिम है, वुड है ये डिम है, कुछ प्लास्टिक है वो डिम है। इसी तरह मतलब बहुत सारे कलर्स जो हम अपने घरों में करते हैं, कुछ डिम होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। यानी फास्ट बुनियाद पर और डिम की बुनियाद पर हम ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। बिग की बुनियाद पर और स्मॉल की या लार्ज की बुनियाद पर हम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं, ग्रुप्स में सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम किसी भी बुनियाद पर, हम किसी भी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम उसको ग्रुपिंग में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ है, ये जनरली हमने बात की। अब कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे जिनकी बुनियाद पर हम चीज़ों को ग्रुप्स में सॉर्ट कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ है, अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं फिर ये हाईलाइट करूँगा, तो यहाँ देखो आप, ये इसको मैं फिर क्रॉस करता हूँ, एक मिनट। अगर आप इसको देखोगे, ये पोर्शन, ये वाला, ये यहाँ पर हार्डनेस है, ये एक प्रॉपर्टी है। हम बहुत सारी चीज़ों को हार्डनेस की बुनियाद पर, इस प्रॉपर्टी पर हम बहुत सारी चीज़ों को ग्रुपिंग में कर सकते हैं। यानी कौन सा चीज़ हार्ड है उनको हम अलग करेंगे, कौन सी थिंग्स सॉफ्ट है जिनको हम अलग करेंगे। अगर हम हार्ड और सॉफ्ट की ग्रुपिंग करेंगे तो आपके अराउंड आप देखेंगे, चाहे आप क्लासरूम में देखोगे, घर में देखोगे, आप अपने माहौल में देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तरफ हार्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरी तरफ सख्त है, ये नरम है। यानी हार्ड और सॉफ्ट, सख्त और नरम। फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ड चीज़ों की बात करेंगे, हमारे पास है स्टोन्स है जो इजीली अवेलेबल है, हार्ड होती है। जो ब्रिक्स है वो भी हार्ड होती है। जिस तरह हमारे पास जो होता है, ये डायमंड हार्ड होता है। हमारे पास इसी तरह जो पेबल्स है ये हार्ड होते हैं। जो बांटे जिनसे हम खेलते हैं वो हार्ड होते हैं। इसी तरह आयरन है ये हार्ड होता है। कॉपर ये भी हार्ड होता है। कुछ वुड्स हार्ड होते हैं। इसके बरक्स कुछ सॉफ्ट चीज़ें होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो सॉफ्ट है। हम अब देखेंगे, हम जो पेस्ट बाथरूम में सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं, अगर वो एक सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट चीज़ होती है। हम वो देखेंगे डनलो, वो सॉफ्ट होता है। हम देखेंगे मेटिंग जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है वो सॉफ्ट होती है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बटर वो सॉफ्ट होती है। हम घी को देखेंगे वो भी सॉफ्ट होती है। हम केला देखेंगे ये सॉफ्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्ट है और कुछ चीज़ें हार्ड है। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम इन चीज़ों को हार्ड और सॉफ्ट की बुनियाद पर ग्रुप्स में सॉर्ट कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो मैं आपके लिए बताऊंगा, अगर मुझे 10 ऑब्जेक्ट्स आपको बतानी हैं जो हार्ड है,
तो 5 मैं बताऊंगा, 5 आप खुद करोगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा ब्रिक, जैसे मैं आपको बताऊंगा स्टोन, ब्रिक है, स्टोन है, जो पेबल्स है, जो आपके भांटे जिनसे आप खेलते हो वो है। इसी तरह वुड है, प्लास्टिक चेयर होती है, टेबल होता है। तो ये 5 चीज़ें आ गई। इस तरह 5 जो हार्ड थिंग्स वो आप खुद लिखोगे घर में। इसी तरह कल आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, आप लिखो 5 और 10 सॉफ्ट, सॉफ्ट जो चीज़ें होती है उनका ऑब्जेक्ट से उनका नाम लिखो। तो मैंने आपको बताया है बनाना है, वो सॉफ्ट है, बटर है वो सॉफ्ट है, पेस्ट है वो सॉफ्ट है, ऑइंटमेंट्स जो आते हैं ट्यूब्स में वो सॉफ्ट होते हैं। इसी तरह डनलोप है वो सॉफ्ट होता है। ये बहुत सारा फर्नीचर जो है वो सॉफ्ट होता है। हम जो मैटर्स घर में इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो 2-3 चीज़ें आप घर में भी खुद भी कर सकते हो। और एग्ज़ाम में अगर आपको सॉफ्ट और इस बुनियाद पर कोई क्वेश्चन आए, आप अलग अलग ग्रुप्स बनाओ हार्ड और सॉफ्ट का, ये आपके लिए कोई मसला अब नहीं है। ये भी एक प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम ग्रुप्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है, जिस बुनियाद मैंने आपको पहले कहा, प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम ग्रुप्स को सॉर्टिंग कर सकेंगे, उनको ग्रुप्स में, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में हम डाल सकते हैं, उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई हम कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी जो मीन जनरली जो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ी साइंटिफिकली, जिसकी एक वैल्यू है, वो है हार्डनेस, और दूसरा है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होता है। अगर ये 2 टर्म्स आपको समझ आ गई तो समझो आप ये खुद आराम से लिख सकोगे, आप कर सकोगे और आप अंडरस्टैंड कर सकोगे। सोल्यूबल वो चीज़ होता है जो किसी में हल होता है, डिज़ॉल्व होता है, और इनसॉल्युबल वो चीज़ है जो पानी में, लिक्विड में डिज़ॉल्व नहीं होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम चीनी को पानी में डालेंगे वो इसमें हल हो जाती है, इसको हम सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर एक स्टोन या एक पेबल को पानी में डालेंगे वो सॉल्युबल नहीं है, उसको कुछ नहीं हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सॉल्युबल की लिस्ट में डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप इनसॉल्युबल की लिस्ट में डाल सकते हो। तो फिलहाल अगर हम सॉल्युबल की 2-4 मिसालें मैं दे दूंगा, बाकी आप खुद करोगे। लेकिन ध्यान रखना है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल टर्म आपको समझ आ गई तो समझो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। सॉल्युबल में हम लिखेंगे वो चीज़ें जो किसी लिक्विड में सॉल्व होती है, डिज़ॉल्व होती है, हल होती है। इसमें हम लिख सकते हैं शुगर, इसमें हम लिख सकते हैं ये साल्ट, ये दोनों चीज़ें हल हो जाती है। इसमें हम लिख सकते हैं जो हमारे घर में टर्मरिक होता है वो पानी में हल हो जाती है। इसमें मिर्ची पाउडर है, चिली पाउडर है, वो भी हल हो जाती है। कलर कोई हमारे पास होता है वो डालेंगे वो भी हल होता है। हम मिल्क डालेंगे इस पानी में वो भी सॉल्व होता है। इस तरह बहुत सारी 2-4-5 चीज़ें आप खुद लिखोगे। अगर इनसॉल्युबल चीज़ों की बात करेंगे तो मैं 2-4 चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर प्लास्टिक का कोई टुकड़ा हमारे पास घर में पड़ा है, वो पानी में हम डालेंगे, वो आप खुद जान सकते हो वो हल नहीं होता है। आपके हाथ में जो पेंसिल है, अगर इसको पानी में डालोगे ये हल नहीं होगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई घर में गिलास है, गिलास जो आपके घर में इस्तेमाल करते हो, उसको पानी में डालोगे वो हल नहीं होता है। प्लेट्स है वो पानी में डालो हल नहीं होते हैं। इस तरह बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स है, या लकड़ी है, वुड है, पानी में डालोगे हल नहीं होती कि। इसके बाद अगर पेपर डालोगे वो धीरे धीरे पानी में हल होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को इस बुनियाद पर भी आप ग्रुपिंग में मतलब ये डिवाइड कर सकते हो कि क्या ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल भी हमने यहाँ पर ये सीखा है। अब यहाँ पर आपके लिए एक टेबल दिया हुआ है, सबस्टेंस डिसअपीयर्स इन वाटर डज नॉट डिसअपीयर इन द वाटर। वो सबस्टेंस जो पानी में डिसअपीयर होते हैं, वो सबस्टेंस जो पानी में डिसअपीयर नहीं होती है। ये साल्ट है, मैंने इसको मार्क किया है, हाईलाइट किया है। अब ये पानी में डिसअपीयर होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ देखेंगे जो जो चीज़ें पानी में डिसअपीयर होती हैं, वो उसको उनको उनके आगे हम ये लिखेंगे। जो डिसअपीयर इन द वाटर डज नॉट डिसअपीयर, डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन द वाटर, कम्प्लीट। शुगर ये भी इसी तरह डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन द वाटर शुगर। सैंड यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे, ये डिसअपीयर नहीं होती है। चाक पाउडर ये पार्शियली होता है, यानी ये पूरी तरह नहीं होता है, ये पार्शियली होता है। इस पे मैं 2 लकीरें डालूँ, यानी हट के थोड़ा, ये पार्शियली होता है। इसी तरह आपके पास सॉ डस्ट, ये टोटली भी सॉल्युबल वाटर में नहीं है, इसके ऊपर हम क्रॉस मार्क करेंगे। तो इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है।
तो इस बुनियाद पर भी हमने थिंग्स को अलग किया है, सॉल्युबल कौन सा है और इनसॉल्युबल क्या है, कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी हमें बताई जाती है, एक्टिविटी नंबर 5, आप गौर से देखोगे, मैं इसे पढ़ूंगा। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। ये सारी लिक्विड चीज़ें हैं। आपने विनेगर सिरका जिसे बोलते हैं, लेमन जूस नींबू का जूस, ये तो आपको पता ही, अक्सर हम आज गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। मस्टर्ड ऑयल ये मस्टर्ड ऑयल भी आप जानते हो, कोई और कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ये भी आप जानते हो, या केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल वगैरह, ये सारी लिक्विड है। टेक ए गिलास ट्रेम्बलर, फिल इट अप विथ हाफ विद वाटर। एक गिलास को हमने लेना है, उसको आधे तक हमने पानी में, हाफ उसका जो पानी से भरना है। एड फ्यू स्पून्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस, स्टायर इट वेल। फिर हम उसमें से हमने चंद जो ये हमने ये जो हमने चीज़ें पढ़ी है, जैसे केरोसिन ऑयल या कोकोनट ऑयल है, या विनेगर है, या ये है ये केरोसिन है, मस्टर्ड ऑयल है, लेमन जूस है, उसमें से चंद ड्रॉप्स, किसी के चंद ड्रॉप्स उस गिलास में डालो, उसको आप फिर किसी स्टायर करो, किसी चम्मच से या किसी राड से उसको ऐसे ऐसे गोल गोल करो ताकि वो इसके साथ हल हो जाए। It stands for few minutes. Observe whether the liquid mixes with the water. आप देखो क्या ये मिक्स हो रहा है वाटर के साथ। Repeat the same experiment with other liquids. फिर हमने जो बाकी एक के साथ हमने किया, ये लिक्विड हम सारी वो जो हमने वो लिस्ट पढ़ी है उनके साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट करना है। लिक्विड्स आर सॉल्युबल, डू यू नो, राइट योर ऑब्जर्वेशन। फिर हमने अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। आप देख सकते हो विनेगर है, ये जो इसमें फिर मैं यहाँ पर इस हाइलाइटर का इस्तेमाल करूँगा। जो विनेगर है ये मिक्स वेल हो जाएगा, सॉरी ये वेल मिक्स हो जाएगा। इसी तरह लेमन जूस ये भी वेल मिक्स हो जाएगा। इसी तरह मस्टर्ड ऑयल ये पार्शियली हो जाएगा, ये पूरा नहीं हो जाएगा। कोकोनट ऑयल ये भी पार्शियली हो जाएगा। केरोसिन ऑयल ये कम्प्लीटली हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो चंद चीज़ें कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाएंगे, कुछ कम्प्लीट नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, एक ये है, एक है और ये है, ये नीचे दिया हुआ है। तो ये चीज़ें भी आपने नोट की होंगी। तो ये और एक एक्सपेरिमेंट था आपके लिए। अब यहाँ पर ये बताते कि हमने ये नोट्स किया, कुछ ऑब्जेक्ट्स हल होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हल नहीं होते हैं। तो इस बुनियाद पर भी हम ग्रुप्स को सॉर्टिंग में कर सकते हैं। Bojo suggests that we also check if the liquid that we use in activity 5 mix well with some liquid or other liquid. हम ये भी देख सकते हो कौन सा किस लिक्विड में अच्छी तरह से हल हो सकता है, ये भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पहली इज curious to know whether gases also dissolve in the water. अब जो ये एक बच्ची है उसमें वो, अब इसने लिक्विड की बात की, लिक्विड इसमें साल होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ पार्शियली होते हैं, कुछ फुल्ली होते हैं, हाँ, कुछ हल उसके टोटली हल नहीं होते हैं। लेकिन अब इनका ये मसला है कि बोलते हैं क्या अगर लिक्विड में हल हो जाता है, क्या गैसेस भी इसमें, सॉलिड्स भी, कुछ सॉलिड्स हल होते हैं, कुछ सॉलिड्स हल नहीं होते हैं। लेकिन लिक्विड्स भी कुछ हल होते हैं, कुछ सॉल्युबल है, कुछ इनसॉल्युबल है। इस तरह का हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस पे बात करेंगे, उसमें भी कुछ सॉल्युबल है, कुछ इनसॉल्युबल। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वायर एज अदर्स आर नॉट। हाँ, कुछ सॉल्युबल है, कुछ नहीं है। वाटर यूजुअली से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैसेस इसमें डिजॉल्व, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन द वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द वाटर। जो वाटर में प्लांट्स, जो वाटर बॉडीज़ होती है, जो वाटर प्लांट एनिमल्स होती हैं, या वो एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है जो वहाँ पर रह रहे हैं ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन वहाँ पर डिजॉल्व होती है इस वाटर में एक लिटिल क्वांटिटी में, उनसे वो ऑक्सीजन मुहैया होता है। तो अब और एक एक्टिविटी हम ले सकते हैं, इस बुनियाद पर भी हम चीज़ों को ये कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कैमरा भी ऑन करता हूँ कि किस बुनियाद पर हम, किसी बुनियाद पर हम इनको, एक मिनट, तो किसी बुनियाद पर हम उनको कह सकते हैं। तो
यहाँ पर हम एक और चीज़ ले सकते हैं, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट आर सिंक इन द वाटर। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि कौन सी चीज़ें जिनको हम डालेंगे पानी के ऊपर वो तैरते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में डालेंगे वो पानी के नीचे चली जाती हैं, वो डूब जाती हैं। तो फ्लोट बोलते हैं तैरने को, सिंक बोलते हैं डूबने को। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separate out from water. जो insoluble, जो हल नहीं होते, वो पानी से जुदा होते हैं जब उनको हम इसमें हल करने की कोशिश करते हैं. You may also notice this with some liquids in the activity 5. Some of the materials that do not mix with the water float to the surface of the water. जो मिक्स नहीं होते हैं, अब मसला यहाँ है, उन्हीं में से एक ग्रुप निकलता है जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं. अब जो सोल्यूबल है वो जो इनसोल्यूबल है, जो सोल्यूबल है वो गए तो गए, जो इनसोल्यूबल है उनमें भी दो तरह की चीज़ें हैं, दो प्रॉपर्टीज़ है. एक वो ऑब्जेक्ट्स है जो पानी के ऊपर तैरती है और जिनको फ्लोटिंग बोलते हैं, और जो बाकी है वो पानी से नीचे पानी के अंदर डूब जाती हैं, उनको हम सिंक बोलते हैं. तो इस बुनियाद पर, इस कैरेक्टर की बुनियाद पर भी हम चीज़ को ये क्लासिफाई कर सकते हैं कौन सी चीज़ें पानी के ऊपर ये तैरती हैं, कौन सी नहीं है. You may have also noticed some of the materials that do not mix with the water float on the others may have the sink to the bottom of the trembler, right? Yes, we notice many examples of objects that float in the water or sink. तो बहुत सारी चीज़ें हम एग्जांपल ले सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा. पत्थर वो डूबेगा, अगर लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा वो पानी के ऊपर फ्लोट हो जाएगा. चप्पल हम डालेंगे अपनी, वो पानी के ऊपर फ्लोट हो जाएगा. कागज़ का टुकड़ा डालेंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट हो जाएगा. हम बांटा डालेंगे वो नीचे चला जाएगा. कील डालेंगे कील नीचे चला जाएगा. शीशे का टुकड़ा डालेंगे वो पानी के अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा. बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ डूबेंगे कुछ पानी के ऊपर रहेंगे. आप एक लंबी सी लिस्ट बना सकते हो. एग्जाम में अगर इस तरह का कोई आपको क्वेश्चन होएगा, आपके लिए कोई मसला नहीं है, मसला कोई नहीं है. तो इस तरह से आप लिस्ट एक बना सकते हो कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डूबती हैं, कौन सी चीज़ें पानी के अंदर नहीं डूबती हैं. सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन द वाटर वाइल अदर सिंक. ये आप यहाँ देख सकते हो. फिर मैं यहाँ पर आपके लिए बताऊँगा. मैं यहाँ पर इसका सॉरी मुझे ये कहाँ गया इसका, ये है. तो ये आप देख सकते हो. ये यहाँ पर एक ये यहाँ पर एक इन्होंने एक बीकर लिया है, इसमें हाफ फिल उसको पानी उसमें डाला है. आप देख सकते हो प्लास्टिक की बॉल इसके ऊपर है, ये लीफ का पत्ता है ये उसके ऊपर है, ये छोटा कुछ और चीज़ है ये इसके ऊपर. इसके बरक्स अब चाबी देखो वो नीचे है, एक सिक्का है वो नीचे है, छोटे छोटे पेबल्स है वो पानी के अंदर डूब गई हैं. तो ड्रॉप्स ऑफ हनी आल्सो यू इन द गिलास वाटर हैपन्स टू बी ऑफ अदर्स. तो इस बिनाद पर भी हम चीज़ों को कर सकते हैं. तो ये आज के लिए इतना है. कल हम ये जो उसकी बाहर प्रॉपर्टीज़ है जिनकी बिना पर हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसमें हमारे बहुत अभी जो डिस्कस करना है वो ट्रांसपेरेंसी है, कौन से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है, कौन से नॉन ट्रांसपेरेंट, फिर एक्टिविटी 6 हमने करनी है. और इसके बाद हम इंशाल्लाह इसको समराइज़ करेंगे. तो फिर उसके बाद कल हम तकरीबन इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अगर लंबा जाता है तो मेरे ख्याल से फिर इसको ये मुश्किल है. ये अगर हम फिर इसको और लंबा करेंगे तो ये फिर डाउनलोड नहीं होगा. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.